Hello everyone. So as I've told you yesterday, today it will be the last lecture of chapter number 1 of microeconomics, which was introduction and central economic problems. So this unit is of 6 marks. Okay, this unit is of 6 marks and it is a chapter as well as a unit. In microeconomics, you are having 4 units. First was introduction and central economic problems. This was the first chapter also and first unit also, which we have completed, which we will be completing today. Then second will be theory of a consumer behavior. It is a unit. In this we are having 2-3 chapters. Then theory of producers behavior. It is also one unit. It is having 5-6 chapters. And then last unit will be forms of market and price determination. It is having 2 chapters. Okay, so today we'll be summarizing the first unit as well as the first chapter. Okay, so as you can see here, written 2 things in a tabular form. Obviously it indicates we will be studying the difference between these 2 terms, and if you will be looking these terms carefully, so this is what we have discussed earlier only. This is positive, normative. So just by looking to these 2 terms, you might be recalling something which we have already discussed earlier. I've told you earlier that positive and normative, they are a form of 2 types of economic study. Okay? Whenever we study economics, we try to find out 2 aspects. We deal economic study in 2 broader ways. So what is positive and what is normative, we will be discussing today, and 2-3 more terms with which we will be ending this chapter. So now what is positive analysis, positive studies, positive economics, and what is normative analysis, normative studies, normative economics. So basically what is the difference? This is that form of economic study, positive is that form of economic study in which we are actually looking into the actual situations which are actually faced by the economy. ठीक है, कहने का मतलब क्या है? These are those situations which are actually going on, which is the real face value of the economy. अभी इकोनॉमी में क्या चल रहा है, अभी इकोनॉमी में क्या situations face हो रही हैं, what is actually present in the economy, कौन सी situation अभी actual में present है, अभी survive कर रही है और हमारी इकोनॉमी को उसको actual में face करना पड़ रहा है. That is what known as positive economics, positive studies, positive analysis. So now what is normative? So like positive was indicating the actual or present situation जो actually में अभी चल रही है. Normative studies indicate the ideal situation. Look, why we are studying economics? I've told you in the beginning, in the first lecture itself, कि economics is the study of an economy. आपने सबसे पहली चीज ये पढ़ी थी कि economics basically economy की study है, और उसी चीज़ को यहाँ पे हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं कि एक स्टडी होती है एक्चुअल सिचुएशन की जो अभी प्रेजेंटली हो रही है, जो अभी इकोनॉमी में चल रहा है, जो ऑन गोइंग है, जो हम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं. ठीक है, इसको अभी हम फेस कर रहे हैं और अभी हमारे पास हो सकता है इसके लिए कोई अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो कोई ऑल्टरनेटिव ना हो, जैसे कि आप अभी देख रहे हो. और एक ऐसी सिचुएशन होती है जो हम अपने आगे आने वाले टाइम के लिए सोचते हैं. ठीक है, ऑब्वियसली पर्सनली भी हम कुछ प्रेजेंट सिचुएशंस फेस करते हैं और हम कुछ फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि भाई हम कुछ ना कुछ सुधार करेंगे. तो सेम हैपन्स विद द इकोनॉमी ऑल्सो, कि अभी जो स्थिति चल रही हैं उनको समझकर हम कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में हमारी स्थिति में सिचुएशंस में क्या है, इम्प्रूवमेंट है, हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, डेवलप करे, एक आइडियल सिचुएशन पे पहुंचे. तो वो एक जरिया होता है थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग. समझ रहे बात को? अभी जो चल रहा है, हो सकता है हमने पहले प्लान्स बनाए थे, वो अच्छे रहे नहीं रहे, जो भी रहा, पास्ट को आपको नहीं देखना. पॉजिटिव में हम सिर्फ और सिर्फ किसको देखते हैं, प्रेजेंट को देखते हैं. प्रेजेंट को ध्यान में रखते हैं कि अभी चल क्या रहा है, अभी हो क्या रहा है, अभी इकोनॉमी में क्या क्या चीज़ें इकोनॉमी एक्सपीरियंस कर रही है, तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव. अब नॉर्मेटिव का मतलब है भाई आज की स्टडी को देख के ऑब्वियसली वी शुड वर्क फॉर समथिंग बेटर फॉर आवर फ्यूचर ना. वी शुड मेक सर्टेन एफर्ट्स विच इम्प्रूव आवर इकोनॉमी इन फ्यूचर. तो आगे चल के हमारी इकोनॉमी और इम्प्रूव कैसे करेगी, फ्यूचर में हम कैसे एक अच्छी स्थिति में पहुंचेंगे, उन स्टडीज़ को कहते हैं नॉर्मेटिव स्टडीज़. तो बेसिक डिफरेंस क्या है, दिस इज़ द एक्चुअल सिचुएशन जो अभी है, एंड दिस इज़ द आइडियल सिचुएशन जो होनी चाहिए. हमारी इकोनॉमी किस तरीके से इम्प्रूव करनी चाहिए, हमको उस तरह की भी एक स्टडी पैटर्न बैठाना पड़ेगा.
सो नाउ लुक एट द सेकेंड पॉइंट ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू. सो ये बताता है व्हाट इज गोइंग ऑन, है ना, अभी क्या चल रहा है. जैसे कि किसी भी स्टेटमेंट में आपको इज मिल गया, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअल अभी की बात बता रहा है वो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा. ठीक है, तो वो होती है पॉजिटिव स्टडीज. जैसे कि कोविड-19 इज प्रेजेंट डे पेंडेमिक और अ ह्यूज डिजास्टर. अगर ये स्टेटमेंट आपको मिले कहीं पे तो ये कौन तरह की, दोनों में से कौन से तरह की स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है नॉर्मेटिव है. कोविड-19 इज अ ग्लोबल पेंडेमिक, इज अ ग्लोबल पेंडेमिक. तो ये क्या बोल रहा है कि कोविड-19 आज की डेट का ग्लोबल पेंडेमिक है विच इज अफेक्टिंग एवरीवन. सो दैट इज व्हाट काइंड ऑफ स्टडी, दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि वो अभी इकोनॉमी की एक्चुअल सिचुएशन बता रहे हैं. और इस तरह की स्टेटमेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, व्हाट इज का आंसर बाकी. दूसरी तरफ अगर मैं हम बोलें कि द वर्ल्ड शुड find some vaccine, the economy should find some vaccine for this rapid spreading coronavirus disease. So that becomes normative study. ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि हमारे नेशन को कितना नुकसान हो रहा है, लेकिन हम आगे के लिए क्या कर रहे हैं, वैक्सीन की तैयारी कर रहे हैं. तो हम एक आइडियल सिचुएशन पे आने की कोशिश कर रहे हैं. हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट उनको मिले ताकि उनकी डेथ मिनिमाइज़ हो, उनकी सफरिंग मिनिमाइज़ हो और ये डिसीज़ कम से कम स्प्रेड हो. तभी हम फ्यूचर के लिए और लॉकडाउन और कुछ रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट बना रही है, अलग अलग जोन में रिस्ट्रिक्शंस बनाने का कारण क्या है, ताकि हम एक आइडियल अच्छी बेटर सिचुएशन में आ सकें. अभी जो है, अभी हमारे लोग मर रहे हैं, अभी हमारे इतने हॉस्पिटल्स भरे हुए हैं, ये बीमारियां फैल रही हैं. तो ये तो पॉजिटिव सिचुएशन होगी, व्हाट इज़ गोइंग ऑन. लेकिन बेटर क्या होगा कि हम क्या करें, थोड़ा सा लॉकडाउन पीरियड को बढ़ाएं, थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस बढ़ाएं. अभी भी कई सारे जो कम्युनिटी सेंटर्स हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस, उनके ऊपर क्या लगाएं, एक रोक लगाएं, ताकि हम एक आइडियल सिचुएशन पे आए, आगे चल के ये हमको और ज़्यादा नुकसान ना दे पाए. सो व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए. ठीक है, वॉट ऑट टू बी, और आप यहाँ पे शुड भी रिमेंबर कर सकते हैं. वॉट शुड बी देयर, वॉट ऑट टू बी के साथ क्या रिमेंबर कर सकते हैं, शुड. तो किसी भी स्टेटमेंट में आपको शुड मिलता है या इट ऑट टू बी देयर, तो आपको समझ में आता है कि नॉर्मेटिव स्टडी है, ये नॉर्मेटिव एनालिसिस है इकोनॉमी की. थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, दे आर इंफॉर्मेटिव इन नेचर. ठीक है, इंफॉर्मेटिव है. इन्फॉर्मेटिव का मतलब क्या है कि वो आज की प्रेजेंट डे इन्फॉर्मेशन देती हैं. जितनी भी पॉजिटिव स्टेटमेंट, जैसे कि आप आज की डेट पे न्यूज़ सुनो या आप आज के डेट पे न्यूज़पेपर पढ़ो, तो आपको सारी कौन सी स्टेटमेंट्स मिलेंगी, सारी नहीं, हाँ, लेकिन ज़्यादातर क्या मिलेगी, पॉजिटिव. कि आज की डेट पे कोरोना वायरस के इतने केसेस हैं, इस स्टेट में इतने केसेस हैं, राजस्थान में इतने नए केसेस हैं, अलवर में इतने नए केसेस हैं, यही सुनने को मिलेगा आपको, है कि नहीं. तो दीज आर व्हाट पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. वो हमको क्या कर रही हैं, वो हमको इन्फॉर्मेशन दे रही है कि भाई ये चल रहा है, ये इन्फॉर्मेशन भाई ये चल रहा है, ये हो रहा है, ये एक्चुअल में व्हाट इज, ये हो रहा है अभी एक्चुअल में. तो वो सारी क्या होती हैं, वो सारी होती हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट्स. दूसरी तरफ आ जाओ नॉर्मेटिव. नॉर्मेटिव क्या होती हैं, नॉर्मेटिव आर सजेस्टिव इन नेचर. ये देखो सजेस्टिव, सजेस्टिव का मतलब ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही कि भाई क्या हो रहा है, ये हमको सजेशंस दे रही है कि कैसे आप और सुधार कर सकते हैं. जैसे कि मान लो कई बार न्यूज़पेपर में प्लान के हिसाब से भी आता है कि इस मिनिस्टर ने ये कहा है कि आगे ये होने वाला है, कि 1 महीने में ये होने वाला है. सीबीएसई ने अब ये बोला है कि अब फ्यूचर के लिए ये करेंगे. आरबीआई ने ये डिसीजन लिए आगे के लिए ये करेंगे, है ना. ये शुड जो वर्ड आ जाता है, जहाँ सजेशंस आ जाता है, जहाँ पे कुछ ऐसी हमारे पास स्टेटमेंट्स आ गई जो हमको कुछ इम्प्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ क्या दे रही हैं, सलाह दे रही हैं, वो क्या होती हैं, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स, नॉर्मेटिव एनालिसिस. नाउ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन दीज टू, कि इनका इम्पैक्ट क्या होता है. इनके साथ अगर ऐसी कोई स्टेटमेंट है, मान लिया ठीक है, इन 3 पॉइंट्स हमने समझ लिया कि स्टेटमेंट क्या होती हैं, कैसी होती हैं, लेकिन अब इनका इम्पैक्ट क्या है, इनका इफेक्ट क्या है, वो ये चौथा पॉइंट बताता है. ये कह रहा है दे आर पुट टू इंटरप्रिटेशन. अगर कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसको क्या किया जाएगा, उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, उसको समझा जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा. भाई आज बोला कि कोविड-19 के आज की डेट पे इंडिया में 5000 केसेस हैं, 5000 न्यू केसेस हैं. तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट को हम चेंज तो कर नहीं सकते. भाई जो है वो तो रहेगा ही, 5000 तो 5000 ही रहेगा, वो 6000 भी नहीं होगा, 4000 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा. तो जो है उसको एग्जैक्टली लेके इंटरप्रेट किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, उसके ऊपर स्टडी होती है कि चल 5000 है ना, चलिए मान लिया पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या कहती है 5000 है, तो अब इसके ऊपर इंटरप्रिटेशंस करो, इसके ऊपर स्टडी करो, और इसके अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते. दूसरी तरफ नॉर्मेटिव,
अब देखो नॉर्मेटिव, अभी हमने इनको इंटरप्रेट कर लिया एक्चुअल सिचुएशन को, अब हमको इसी सिचुएशन को सुधारने के लिए इसके ऊपर थोड़ा वर्क करना पड़ता है और कुछ स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती है जिसको क्या कहते हैं नॉर्मेटिव, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए आइडियल होगी, बेटर होगी देन आर प्रेजेंट। तो वो उन स्टेटमेंट्स का अब क्या होगा, अब आप मान लो आपने प्रेजेंट सिचुएशन को इंटरप्रेट करके नॉर्मेटिव सिचुएशंस बना दी, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स बना दी, तो अब उनका क्या करें, बनने के बाद क्या करें, उसका कोई थॉट बोलवाएं हम बच्चों से, या फिर न्यूज़पेपर में सिर्फ हेडलाइन में देके ऐसा शुड होना चाहिए, सिर्फ सजेशंस होनी चाहिए, अभी तक हो गए 3 पॉइंट उनकी सजेशन होनी चाहिए। अब क्या करें उसके बाद, भाई उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना पड़ेगा, तभी जाके तो इम्प्रूवमेंट होगी। हमको सिर्फ ये पता है, आप रोज़ सुबह आप 10 बजे उठ रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं यार वो कल से 5 बजे उठना चाहिए, उठ कितने बजे रहे हो, 10 बजे। पॉजिटिव एनालिसिस क्या है, 10 बजे उठता हूँ यार मैं, हाँ नॉर्मेटिव पता है कि मेरे को 5 बजे उठना चाहिए, लेकिन सिर्फ सोचने से, सजेशन को मिलने से या इस सजेशन को पाने से काम थोड़ी होगा, इम्प्रूवमेंट थोड़ी होगा, आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो उस नॉर्मेटिव स्टेटमेंट को क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट। तो ये एक नया डिफरेंस है कि भाई पॉजिटिव स्टेटमेंट को इंटरप्रेट किया जाता है और इंटरप्रेट करके नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स बनाई जाती है। जब नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं, आपको पता है क्या करना है, तो उसको भी क्या करने लगो, इम्प्लीमेंट, तभी जाके क्या होगी, इम्प्रूवमेंट्स। So last point of difference between these two which I'll be telling you is the example part, क्योंकि अभी तक मैंने आपको बता दी ये होता क्या है, ये होता क्या है, इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई क्या कर सकते हैं, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका बनने के बाद इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ और इफेक्ट क्या है। अब सिर्फ एक एग्जाम्पल बचा है, और एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता रखा, बड़ा सिंपल सा है, इज आ गया, आइडेंटिफाई कर लो। किसी भी स्टेटमेंट में जो प्रेजेंट सिचुएशन बता रही है, एक्चुअल सिचुएशन बता रही है, व्हाट इज बता रही है, वो क्या है, पॉजिटिव। जैसे कि मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिखा है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 130 करोड़। ओके, तो इंडियन पॉपुलेशन 130 करोड़ से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली ये समझ में आ रहा है भाई, ये हमारी आज की स्थिति है, ये हमारी आज की स्थिति है। ये स्टेटमेंट हमको बता रही है कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी, ये हमको एक तरह की इन्फॉर्मेशन दे रही है। और अब इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करके पता चला यार ये पॉपुलेशन का मार्क तो बहुत ज़्यादा है, इसमें क्या होगा, रिसोर्सेज का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, कई जगह कंसंट्रेशन होगा, कई लोग पुअर्टी अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान होंगे। तो इसमें से एक आइडियल सिचुएशन निकाली, क्या, पॉपुलेशन शुड बी कंट्रोल्ड, देयर शुड बी पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, या पॉपुलेशन शुड नॉट एक्सीड 140 करोड़ और आगे नहीं बढ़नी चाहिए। समझ रहे हो, तो उस तरह की स्टेटमेंट क्या है, इसमें आ गई शुड, तो आप इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ये क्या हो गई, नॉर्मेटिव। अब इसको क्या करना पड़ेगा, जैसे इसको इंटरप्रेट किया और नॉर्मेटिव बनाई, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिसीज, इकोनॉमिक प्लान्स बनाने पड़ेंगे। तो ये है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। और ध्यान में रखना कि पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दो तरह की इकोनॉमिक स्टडीज़ है, और हमारी इकोनॉमिक्स है ही इकोनॉमी की स्टडी, जिसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव एनालिसिस और नॉर्मेटिव एनालिसिस। जब भी आप इकोनॉमी की प्रेजेंट सिचुएशन को समझोगे, उसको आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव एनालिसिस। उस प्रेजेंट सिचुएशन को समझ के इंटरप्रेट करने के बाद आप कुछ आइडियल या कुछ बेटर सिचुएशन या कुछ बेटर एनालिसिस, बेटर स्टडी लेके आओगे, तो वो होगी नॉर्मेटिव, जिसको आपको इम्प्लीमेंट करके ही अपनी इकोनॉमी में डेवलपमेंट लाना होगा।